Hello everyone. So today we are going to start a very important topic, that is vocabulary. So I'm going to give you some tips to improve your vocabulary. Plus we will start from the very basics, the Latin and Greek origin words in English. So this topic is very important for all the students, those who are in class 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus those students also, those who are preparing for competitive exams. So the first step is read, read and read. The more you read, especially novels, literary works, but also magazines, newspaper, the more you will be exposed to. If you will get exposed to new words, when you will read a lot. As you read and uncover new word, use a combination of attempting to derive meaning from the context of the sentence as well as from looking up the definition in dictionary. So when you are reading, what you have to do, you have to try to derive the meaning. Derive means meaning को you have to take out the meaning. You have to meaning को उसमें से बाहर निकालना है, समझना है कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि और आपको इसके अलावा डिक्शनरी को भी देखना है. तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए आप नए नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे और आप उनके स्ट्रक्चर वर्ड्स के देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है वर्ड्स का. और जब ये आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा तो आपको रीडिंग अच्छी लगने लगेगी. कीप अ डिक्शनरी एंड अ थियासिस हैंडी. डिक्शनरी आपके पास हमेशा एक होनी चाहिए. जो बच्चे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रीडिंग उनके लिए एक मस्ट है. ठीक है, चाहे वो इन प्रिंट हो, सॉफ्टवेयर हो, ऑनलाइन हो, इट्स अप टू यू. When you uncover a new word, look it up in the dictionary to get both its pronunciation and its meaning. आपको थियासिस डिक्शनरी जो है वो प्रोनाउंसिएशन भी बताती है. Next, go to thesaurus and find similar word and phrases and their opposites, synonyms, antonyms, respectively, and learn the nuisance amongst the word. अब आप जो है जब भी आप न्यू वर्ड्स को देखें तो thesaurus में जाइए, उसके antonyms, synonyms और उसके phrases क्या क्या है वो सब देखिए. So you have to work hard to improve your vocabulary. Third important tip is that use a journal. What do you mean by journal? That you have to keep a running list of all the new words that you discover. Whatever new words you are coming through, you make a list of them and you make your journal, make your diary type, and in that you keep writing the words. So every day it will give you reinforcement also. When you will fill 2-3 pages, then you will have a reinforcement that I have learned so many new words. You can revise them also. Learn a word a day. This is a very common thing which is told by everyone throughout school time also. You must have heard from all the teachers. So you must be very rigid. Okay, why rigid? Because if you have firm determination, then only you can do this. But if you really want to improve your vocabulary, if you really want to be good in English, you should write down a word. Then go back to your roots. This is very important because in English, more than 60% words are from Greek and Latin origin. So if we know that meaning of that origin, then we can learn a number of words from that single. This video is fully based on Latin and Greek root words. Play some games. Then you should play some games like Spello-Fun. Then you can play some crossword puzzles. We have cryptic crossword puzzle in our Navodayas. Then anagrams, word jumble, Scrabble, Boggle. These type of games you can find them online also. If you go and search in Google, you can find these words. So you go and play those words. This will really help you to improve your vocabulary. Then engage in conversations. This is very important for speaking purpose also, for writing purpose also, and for listening purpose also, that you should be engaged in conversations. Students, you have got a golden chance because at this time I am working on all the 4 skills, that is your reading skill, writing skill, listening skill and speaking skill. And moreover, there is one more skill, that is thinking skill. So we will be working on that skill also very soon. Okay, now we are going to start English vocabulary derived from Latin and Greek origin. This topic I have also covered in my videos on spellings. If you go and see my videos on spellings, there is a full series of spellings, how to improve your spellings. In that morphology part, I have given these Greek and Latin root words. There also I have explained them in a very easy way. If you want more, you can go and see that video on spellings. Okay. You will find Latin and Greek words
and this is not exhaustively, but will give you. I have not. It is impossible to take all the words because there are lots of words in. I told you that more than 60 to 70% words are from Latin and Greek origin only in English. So it is very difficult to cover them in one video, but I will try. So now first we'll take the word Audi. Now if you remember this Latin origin word Audi, Audi you can see here. Audi, what do you mean by Audi? Here. If you remember the meaning of this word Audi, so see how many words you will remember, like audible, which is loud enough to be heard, you can hear, like you can hear my voice, so it is audible. Okay, so see one word. Then audience, again the people who hear, a group of people attending or listening to something, especially a movie or concert. Then auditorium, it's a large theater. So you see by the word audi as the base, you have come across so many words. And when you are reading comprehensions, when you are reading storybooks, that time if you see the word with odd, then you can easily communicate that it must be related to something hearing. Then you see audition. Again, audition means a trial performance in which a musician or actor is heard and evaluated. Then audio visual, both sight and sound. Audio plus visual. Visual means which you can see. So you see by one word audi, you have learned so many words. Then again auditory, having to do with hearing. Auditory. Audi, a car. It is the name of a car and it has nothing to do with hearing. It is a very famous car, but Audi. Okay, now we will come across many words, and students, you please make your one copy of vocabulary in which you give the topic vocabulary because it is in your syllabus also, and you will be evaluated on this basis. So you please make your notes. On one side you write the words from Greek and Latin origin words, their meaning and how we have used them. Okay, now you see like aster, astro, both mean star. So whenever you see these words aster and astro, you understand it is something related to star, like astrology, astronomer. Okay, who is an astronomer? Astronomer is a person who, yes, who tells us on the basis of the stars, जिसको हम लोग हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं, ज्योतिषी है ना, astrology, ज्योतिषी. Odd, oddly we have already done. Os, बिबल means book, है ना. बिब्लियोग्राफी, आपने किसी भी किताब के पीछे देखो आप, बिब्लियोग्राफी दी रहती है, मीन्स कौन कौन सी किताबें उसमें और है. क्रॉन, क्रॉन मतलब क्या होता है? टाइम. क्रॉनिकल्स, क्रोनोलॉजी, तो ये सब टाइम रिलेटेड है. क्रेड, क्रेड माने क्या होता है? बिलीव. क्रेडुलस है ना, नॉन क्रेडुलस, अनक्रेडुलस, कितने वर्ड्स बनते हैं. तो अगर आपको ये पता है कि क्रेड का मतलब बिलीव है, तो ये रूट वर्ड्स हैं. डक या डक्ट माने लीड. ग्राफ, ग्राफ देखो किसी भी वर्ड के संग अगर ग्राफ लगाए मतलब वो लिखने से संबंधित है, राइटिंग रिलेटेड है. मैन, हैंड, मैन मतलब यहाँ पर हैंड. देखो मोर और मॉट, MORT, मॉट, मॉट माने डेथ, मोर माने भी डेथ. जैसे पोस्टमार्टम है ना. विट, विव यानी लाइव, जो विच है लाइव. ठीक. ओके, इधर देखो लैटिन वर्ड मीनिंग एंड एग्जाम्पल. अब ये वर्ड्स आपको प्रीफिक्स में भी काम करेंगे. अभी हम जब हमारा आगे वीडियो वोकैबुलरी पे होंगे तो उसमें हम प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड सब कुछ आपको बताएंगे. तो उस समय ये वर्ड्स फिर से दोबारा आपके पास आएंगे. तो अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करने वाले हैं. जैसे एक्स वर्ड, EX, EF अगर किसी वर्ड के पहले लगा है तो आप समझ जाइए इसका मतलब आउट ऑफ यानी फ्रॉम. एक्सक्लूड, जैसे एक्सक्लूड है ना, यानी उसके बाहर. एक्सक्लूडेड, इंक्लूड माने अंदर, एक्सक्लूड माने बाहर. एक्सवर्ड, एक्सपोर्ट है ना, आउट. एक्सपोर्ट, एक्सट्रूड, एक्सटेंड. तो आपको अगर एक्स वर्ड का मतलब पता है तो आपको कितने वर्ड्स के मीनिंग अपने आप पता लग जाएंगे. एक्सटर, एक्स्ट्रा मीन्स आउटर. ठीक है. एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर माने अंदर, एक्सटीरियर देखो उसमें भी एक्स का वही है, एक्सटीरियर, आउटर. एक्सट्रेम, आउटर मोस्ट, अटमोस्ट यानी एक्सट्रीमिटी. फैक्ट, फिक, फैक्ट, फिक्ट, ये वर्ड कहीं भी लिखे हुए मिले, किसी भी वर्ड के साथ हो, बीच में हो, शुरू में हो, आखिरी में हो, तो इनका मतलब कुछ मेक करने से होता है, कुछ प्रोडक्शन से मतलब होता है. जैसे डिफेक्ट यानी कि मेकिंग सम डिफेक्ट, मेकिंग सम देयर इज समथिंग नेगेटिव. फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, मैन्युफैक्चर कुछ बन रहा है. फैक्ट्री में भी क्या होता है? मेक, कुछ बनती है चीजें, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन है. फेलिक,
फेलिक जो वर्ड है वो अपने आप में हैप्पी, मैरी, खुशी मतलब होता है इसका, जैसे फेलिसिटी है ना। फर, फर माने होता है कैरी, जैसे रेफरेंस, किसी का किसी से रेफरेंस, ट्रांसफर है ना, इधर से उधर कैरी करना। फिड, फिस्ट यानी फेथ, ट्रस्ट यानी किसी में विश्वास रखना, कन्फाइड जिसको कॉन्फिडेंस है ना, ये सब होता है। तो एक ही में आप देख रहे हैं कितने सारे हैं ऐसे। आगे हम पढ़ते चलेंगे। जैसे जेक्ट, जेक्ट ओरिजिन वर्ड लैटिन का है ना, टू थ्रो और हर्ट। जेक्ट माने क्या था, कोई चीज को फेंकना या थ्रो करना, या जैसे कि आपको बॉडी में इंजेक्शन लगता है, इंजेक्ट, ये भी एक फोर्स और ड्राइव है जो मेक समथिंग मेक इनटू द बॉडी, इंजेक्शन लगता है। रिजेक्ट यानी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है ना। रिजेक्ट यानी कि ब्रिंग डाउन। फिर ऑब्जेक्ट यानी टू डिसएग्री। तो आप देखिए ऑफ प्लस जेक्ट, प्रोजेक्ट है ना, ट्राइजेक्ट्री, तो ये सारे वर्ड्स इसमें किससे मतलब है, थ्रो या रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि फोटो भी लगी हुई है उसमें। टेली, टेली माने क्या होता है, फॉर और डिस्टेंस, टेली यानी कुछ दूरी पर, डिस्टेंस में, ग्रीक ओरिजिन वर्ड है ये है ना। जैसे हमने कहा टेलीफोन, टेली मीन्स क्या हो गया, फार, फोन मीन्स, फोन माने क्या होता है, साउंड, फोन का भी एक, फोन भी एक अपने आप में एक रूट वर्ड बन सकता है जिसका मतलब होता है साउंड। तो जब भी आप फोन शब्द कहीं भी सुने तो आप समझ जाए इसका मतलब साउंड से रिलेटेड, ठीक है, साउंड। टेलीफोन, टेलीपोर्ट है ना, टेलीविजन जिसमें दिखाई दे, फार का दिखाई देता है। टेलीग्राम जिसमें आप भेज सकते हैं, राइटर, ग्राम मीन्स लिखना, राइटर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि टेली एक वर्ड जानने से आप कितने सारे वर्ड्स को जान सकते हैं। फिर हाइड्रा, हाइड्रो, हम ये बहुत वर्ड पढ़ते हैं, हाइड्रा, हाइड्रो, इसके भी ओरिजिन ग्रीक वर्ड का है, इसका मतलब होता है वाटर है ना। वाटर का अगर आप वो देखें, WH2O है ना, में भी आप पढ़ते हैं साइंस में भी। तो हाइड्रा, तो हाइड्रेट, एट माने टू बी, तो टू बी विथ वाटर, टू कंबाइन विथ वाटर, हाइड्रेशन, हाइड्रेट। तो आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को आप पढ़ सकते हैं, इसके मीनिंग देख सकते हैं। तो दूसरा वर्ड है बायो, इसका ये भी ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो बायोलॉजी जब हम बोलते हैं, बायोलॉजी, लॉजी माने क्या होता है, स्टडी, लॉजी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है लॉजी माने स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये जूलॉजी हो गया, तो जैसे स्टडी ऑफ एनिमल। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। बायोग्राफी यानी कि लाइफ ऑफ, ग्राफी, ग्राफी का मतलब अभी मैंने क्या बताया था कि विच इज रिटन बाय सम अदर पर्सन है ना, राइट, ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइट। तो बायोग्राफी माने विच इज रिटन ऑन लाइफ ना अपनी। बायो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी, बायो कॉपी है ना। तो ये आप देख रहे हैं कितने सा, ऑटो बायोग्राफी, ऑटो मीन सेल्फ, बायोग्राफी यानी कि बायो मीन लाइफ, ग्राफी मीन्स राइट। तो आप देखिए अगर आप ये रूट वर्ड्स को जानते हैं तो इतने बड़े बड़े शब्दों को आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा आपका हार्डवर्क आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आप अपनी वोकेबलरी पे जरूर काम करें, क्योंकि अगर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे, तो आपने एक पोएम पढ़ी होगी क्लास 6 में थी, वंडर ऑफ वर्ड्स। तो उसमें पोएम में इतनी खूबसूरती से बताया गया है कि दैट देयर आर सो मेनी आइडियाज इन योर माइंड, but how you have to bring that idea with the help of words. So the words, they are the dress and food of our thoughts. So अपने बॉडी को सजाइए है ना, अच्छे फूड खिलाइए, अच्छे ड्रेस पहनाइए, वो क्या है, वर्ड्स हैं। तो जब तक आपके पास वर्ड्स, शब्द ज्ञान नहीं होगा, वोकैबुलरी नहीं होगी, तो आप अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते है ना, अच्छा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो रियली इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, प्लीज टेक दिस वीडियो वेरी सीरियसली। बाई, बाई माने क्या होता है, टू है ना, ट्राई, थ्री, देखो एग्जांपल्स भी दिए हैं, बाइसिकल, बाइसेट, बाइलिंगुअल, बाई वीकली। जब भी बाई वर्ड कहीं देखो तो समझ जाओ कि ये इसका मतलब क्या है। ये देखो इसमें यूनी, यूनी का दिया हुआ है, यूनी माने क्या होता है, वन, यूनिटी, यूनिफॉर्म, यूनी माने वन हो गया ना, वन, यूनिसाइकिल। ऐसे ही पैड, पैड है ना, तो पैड का मतलब पेडिस्ट्रियन, पैड माने क्या होता है, फुट, पेडिस्ट्रियन, पेडिकेयर, मतलब पार्लर में जाते हैं पेडिकेयर कराते हैं। मैनिक्योर मीन्स हाथ का, मैनी माने होता है हैंड, इसलिए याद रखो मैनिक्योर हाथ का क्योर, पेडिक्योर पैर का क्योर है ना। सेंटीपीड, जिसके सेंटी माने बहुत सारे, सेंटी है ना, तो सेंटीपीड जैसे आप बना सकते हैं। डिक्ट, डिक्ट माने टू स्पीक, जैसे डिक्टेशन होता है, डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या है, टू स्पीक और से। वर्डिक्ट, डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन होता है, जो वन मैन होता है, जो उसी का रूल चलता है तो वही बोलता है केवल। कोट, कोट माने कैरी, ट्रैक्ट टू पुल और ड्रैग, ग्राफ मीन्स राइट, मीटर मीन्स मेजर, हाइड्र मीन्स वाटर।
इस टाइप से आप ये रूट वर्ड्स को याद करेंगे। अब आते हैं और रूट वर्ड्स में। प्लम, प्लम माने क्या होता है? लीड, किसी चीज को लीड करना, जैसे प्लम्बर है ना, तो प्लम्बर का मतलब क्या होता है? जो नलके ठीक करता है, तो लीडिंग कर रहा है वो ना उस चीज की। मार, मार माने सी, देखो मार वर्ड का मतलब सी, इससे आपको मार, मैरीन, मैरीटाइम, ये सब पता लग जाएगा, मतलब रिलेटेड टू सी। ओमनी, ओमनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनी माने क्या होता है? ऑल, ठीक है। ओमनी पोटेंट, ओमनी ओमनी पावरफुल, ओमनीपोटेंट माने क्या होता है? विच इज ऑल पावरफुल, है ना। ओमनीशिएंट, है ना, गॉड इज ओमनीशिएंट। नॉम या नम, ये अगर नेम, इसका मतलब क्या है? नेम। जैसे हमने कहा नॉमिनेट, होमोनिम, होमोनिम में सेम वर्ड्स, सेम, होमो मीन सेम होता है। हेट्रो और होमो भी दो वर्ड्स हैं, जो होमो माने सेम, हेट्रो माने अलग अलग, निम माने सेम, यानी कि जो सेम वर्ड्स होते हैं। फिर वोर, वोर माने क्या होता है? ईट या swallow, जैसे ओमनीवोर, जो खा ले, जल्दी हर चीज को खा ले। ओमनी मीन, तो ओमनी हमने पढ़ लिया, ऑल, वोर माने खाना, तो हमें पता लग गया ओमनीवोर माने क्या हुआ, कि जो हर चीज को खा लेता है, हर चीज को swallow कर लेता है, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा आपको इसको पढ़ने में भी। स्यूडो, अब देखो स्यूडो ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड स्यूडो, स्यूडो माने क्या होता है? नकली, है ना। आपने वो पढ़े होंगे कि वो जो बैक्टीरिया कौन सा वाला होता है जिसके स्यूडो होते हैं, पैरामीशियम, है ना, इन सब के। स्कोप, स्कोप माने क्या होता है? व्यू, लुक। ऑटो, ऑटो माने क्या होता है? सेल्फ। ऑटो स्टार्ट अपन पढ़ते हैं ना, बाइक्स ऑटो स्टार्ट आने लगी हैं आजकल, है ना। ऑटो, ये ऑटो शब्द याद रखो, किसी के आगे भी ऑटो लगाए मतलब सेल्फ, खुद। डेमो, डेमो माने पीपल, डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ पीपल। फोर्ट, फोर्ट माने क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, किसी के आगे भी फोर्ट लगाए तो माने स्ट्रॉन्ग। अब देखो डिक्ट से, डक्ट टू लीड, अभी हमने डक्ट का एक पढ़ा था। ग्रेस टू वॉक, जेक्ट, जेक्ट माने थ्रो, पेल टू ड्राइव, पेंड टू हैंग, पोर्ट टू कैरी, स्क्रिब टू राइट, स्क्रिबल, इसको बोलते हैं ना, स्क्रिबलिंग इज नेक्स्ट टू इंसैनिटी, स्क्रिबलिंग इज अ साइन ऑफ इंसैनिटी, यानी जो बैठे बैठे पेन को घिसते रहते हैं, लिखते रहते हैं, वो थोड़े से, उनको बोला जाता है कि पागलपन की निशानी है। स्क्रिबलिंग, स्क्रिप्ट, जैसे मनु स्क्रिप्ट, मनु का मतलब आपको पता है? मैन, मैन माने हैंड, तो स्क्रिप्ट माने लिखना, तो आपको पता लग गया कि स्क्रिप्ट विच इज रिटन बाय हैंड। तो आप देखिए मेन्यू स्क्रिप्ट जैसे वर्ड का मीनिंग आप एक मिनट में पता लगा सकते हैं। ट्रैक, पुल करना, है ना। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का काम क्या है? पुल करना, इससे याद रख सकते हैं आप। तो आप इन वर्ड्स को लिंक कर सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। वर्ड, वर्ड में टर्न, वर्ड माने होता है कन्वर्ट, जैसे रे कन्वर्टेड हो गई, है ना। तो इस टाइप से आप इन वर्ड्स को जब किसी से मीनिंग से याद करेंगे, तो ये रूट वर्ड्स बहुत इजी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है। थोड़ा सा आपको इसमें अपना दिमाग चला के करना है। जैसे ए और एन, देखो ये ए और एन किसी के आगे लग जाए मतलब नॉट, जैसे एनाकी, है ना, अटिपिकल, विच इज नॉट, ठीक है। जैसे आप थीस्ट पढ़ते हैं, फिर अथीस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो आपको ये भी पता लग गया कि ए और एन लगा के आप ऑपोजिट भी बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे वर्ड्स में हेल्प करेगा। एन और एन, एन एनुअल, जैसे ईयरली, है ना। एन मिलियनियम, ठीक। तो आप देख रहे हैं इनियम, इनियम मिलियनियम बीच में आ रहा है। जरूरी नहीं कि रूट वर्ड शुरू में ही आए या आखिरी में ही आए, बीच में भी आते हैं, लेकिन आपको जब आपने इसका रूट वर्ड का मीनिंग ही आपको याद हो गया, तो आप एक मिनट में उस वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंडो, एंडो माने इनसाइड, है ना। एंडो और एक्सो, एक्सो का एक्स आप समझ गए होंगे, आउटर, यस वेरी गुड। एक्स माने आउट, एक्सो, और एंडो, एंडो माने इनसाइड, ऐसे। अब देखो जैसे इम और वो इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, इसी तरह एंडो और एक्सो, ये भी है। एंडोस्कोपी होती है जिसमें अपने बॉडी के अंदर एक कैमरे को डाल के बॉडी के अंदर के स्टमक में और उसके एक्सरे ली जाती है इंटरनल पार्ट्स में। एंडो पैरासाइट है ना, ये एंजियोग्राफी, तो ये सब चीजें क्या है? इनसाइड में हुई। माइक्रो माने स्मॉल, और मैक्रो क्या हो जाता है? बड़ा। माइक्रो, मैक्रो। इसी तरह से आपको इंटर और इंट्रा, ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। पढ़, आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, आप कोई भी स्टोरी पढ़िए, आपको ये वर्ड्स इजीली मिलेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे, तो आपके लिए रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग तीनों सरल हो जाएंगे। आंख, आंख माने रूलर, चीफ, है ना। जैसे एनाकी, एक हमने क्या करा था? जो अकेला रूल करता है, एनाकी। मोनाकी, जो वन मैन रूल है ना, वहां मोनाक, मोनाक माने राजा, रूलर, चीफ रूलर।
अब देखो, ये हाइपो, हाइपो माने क्या होता है, अंडर, है ना। थायराइड जो बीमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक हाइपोथायराइड होती है, एक हाइपरथायराइड होती है। तो उसमें भी हिपोक्रेट जैसे, हिपोक्रेट है ना। फिर आप इनमें वर्ड्स को देखिए, इसमें कितने कठिन कठिन शब्द हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जब आपको हाइपो वर्ड का मतलब मालूम पड़ गया कि अंडर, तो आप समझ जाएंगे हिपोक्रेट माने जो चीज के अंदर छुपा रहता है, यानी जो एक चेहरे के नीचे अपना दूसरा चेहरा छिपाया रहता है। तो आपको हाइपो का मतलब तो पता लग गया कि समथिंग अंडर। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोट्यूस, हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस माने पूरा जिस्ट निकालना किसी चीज का, हाइपोथेसिस क्या है। तो ये, तो हाइपो वर्ड ही अपने आप में आपको बहुत हेल्प कर देगा। फिर देखिए एमबी, एमबी एम्फी माने बोथ, ये अराउंड है ना। एम्फीबियस, एम्फीबियन, जो बोथ, जो लैंड पे भी रहते हैं सी में भी रहते हैं ना, ऐसे हैं जानवर। एमी, एमो यानी लव, एमी एमओ किसी के आगे लग गया माने लव से रिलेटेड। एमिकेबल, जैसे वेयर आर वेरी एमिकेबल एनिमल्स, डॉग इज एन एमिकेबल एनिमल। एन, एन ये अपन ने पढ़ी लिया, ईयरली वाला। एंटी यानी बिफोर, अब एंटी बिफोर, जैसे एंटीसीडेंट यानी कि जो पहले आ रहा है, पहले आ रहा है। फिर एंडर, ह्यूमन, एंडर माने क्या है, ह्यूमन। एंटी, तो एंटे और एंटी दोनों में बहुत अंतर है। तो एंटी माने अगेंस्ट, एक्वा वाटर, तो एक्वा वर्ड तो इतना यूज होता है, एक्वा, एक्वेरियम, एक्वागार्ड, जितने भी वाटर आरओ बनते हैं सब एक्वा, एक्वा के नाम से ही बनते हैं। तो आप याद रखिए कि वाटर। आर्क, फर्स्ट पावर इन पावर, फर्स्ट इन पावर और टाइम, आर्क, आर्किटाइप, ठीक है। एस्टर, एस्टर ये भी बताया था मैंने, एस्टर माने फील्ड, एस्टर माने सॉइल, तो जो सॉइल से एस्टेरॉइड, यानी कि कोई बहुत बड़ी एस्टेरॉइड जो होता है उसको बोलते हैं ना, पूरा अपने आप में एक अंतरिक्ष में रहते हैं एस्टेरॉइड्स जो आके टकराते हैं, जो फील्ड रहती है पूरी। विजुअल, अब देखो ये वाला देखो, गिन, जीवाइन, गायन, गायन माने वुमन, गायन मीन्स क्या होता है, वुमेन। तो मीसो गायन, गायनोलॉजिस्ट, गायनोकी, गायनोफोबिया, फोबिया माने क्या होता है, डर, फोबिया का मतलब बेस वर्ड है डर। तो गायन फोबिया जिसको वुमेन से डर लगता है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं वैसे से, ठीक है। अब आते हैं हम इधर पर, एंट, एंट के पढ़ चुके हैं अगेंस्ट, इसका हम फिर से एक बार और देख लेंगे। इसमें दिए हुए एंटागोनिस्ट, एंटासिड, एंटीएसिड माने जो एसिड के खिलाफ काम करती है। एंटीसेप्टिक होती है ना, जो सेप्टिक के खिलाफ करती है, मेडिसिन ज्यादातर एंटीसेप्टिक्स होती है। फिर डेम, डेम हम पढ़ चुके हैं, पीपल, डेम माने पीपल, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, ये सब, ठीक। फिर आता है हमारा आक, आकी, ये हमने पढ़ा था, रूल, गवर्न, है ना, चीफ। तो ये क्या है, मोनार्की, एनार्की, फिर हेराकी, मेट्रियार्क, मेट्रियार्क माने जहाँ पे माँ का, माँ जो रूल करती है। पेट्रियार्क जहाँ फादर रूल करते हैं, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे मदर का रूल चलता है, मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। और हम लोग के यहाँ पे पेट्रियार्क सिस्टम है जहाँ फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो आर्क माने रूल, और आर्किटेक्ट यानी कि जो नक्शा बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट्स बोलते हैं। तो आर्की माने यहाँ पर क्या है, जो गवर्न कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं उसके ऊपर, पूरे टेक्सचर के ऊपर। आप इन वर्ड्स को रिलेट करके याद करिए। डॉक, डॉक माने क्या होता है, टीच, आई एम, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, टीच कर रहा है ना। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ मटीरियल रहता है जो आपको सिखाता है, कुछ ना कुछ बताता है, इन्फॉर्मेटरी रहता है। फिर देखो कॉमन ग्रीक वर्ड्स और कॉमन रूट वर्ड्स, आपको ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कौन सा ग्रीक है कौन सा रोम लैटिन है, ये आपके लिए बिल्कुल असेंशियल नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए अगर आप रखना चाहें इन्फॉर्मेशन तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप केवल इनके मीनिंग्स पे ध्यान दीजिए और इनको कैसे इनको यूज किया जा रहा है नए नए, उस पर आप ज्यादा अपना ध्यान लगाइए। जैसे एक्वा माने वाटर, बिब्लियो बुक हम पढ़ चुके हैं। क्रोनो माने टाइम, जियो, जियो माने क्या होता है, अर्थ। तो जियोग्राफी यानी ग्राफी मैंने बताया ना, रिटन रिलेटेड टू अर्थ, है ना। जियोलॉजी यानी स्टडी रिलेटेड टू अर्थ। कितना इजी हो गया, लॉजी और ग्राफी हमको पता है मीनिंग, जियो का मीनिंग भी हमको पता है, तब ये बड़े बड़े वर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गए। फोटो, फोटो माने क्या होता है, लाइट, फोटो है ना, फोटोसिंथेसिस, आप बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। फोटो, फोटो माने क्या है, लाइट। ऑडी, ऑडी माने हेयर, सबसे पहले हमने यही वर्ड किया। सर्क, सर्क माने राउंड, किसी के अभी सर्कमफ्रेंस, सर्कल, कहीं भी ये सर्क वर्ड आए तो आप समझ जाइए कि राउंड से कुछ समथिंग रिलेटेड टू राउंड। जुर, जुर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये लॉ से रिलेटेड है, जैसे जुडिशरी है ना, जस्टिस, जज, ये सब तो सब इसी से आते हैं। मेनू, मनु, मनु हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना। पैक्ट मींस पीस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पैक्ट, आजकल इस वर्ड का बहुत यूज हो रहा है। जैसे पैसिफाई है ना,
ये वर्ड्स मतलब जो पीस से रिलेटेड होते हैं। फिर आप इसमें देखिए प्रो, प्रो माने क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ, ये देखिए हॉर्स इसके आगे खड़ा हुआ है तो ये याद रखिए प्रो। जैसे प्रोफाउंड, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माने क्या होता है, आगे खड़े होकर किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है ना, जैसे हमने मास्क लगा रखा है, इट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द वायरस। ये आगे लगाते हैं ना, मुंह के आगे लगाते हैं माइक, तो याद रखिए फ्रंट। प्रोस्पेक्ट, प्रोग्नोसिस, प्रोविजंस, है ना, ये सब। अब आप देखिए ये वाले वर्ड, क्वाड, क्वाड वर्ड आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन आपको शायद इसका मीनिंग नहीं मालूम। क्वाड्रिलेटरल होता है ना, जो क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं, नेशनल क्वाड्रिलेटरल माने नेशनल बहुत बड़े बड़े रोडवेज बन रहे हैं उनको, जहाँ फोर फोर लेन क्रॉस होती है आपस में। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड माने फोर, क्वाड्रेंगल, आप ट्राइंगल से एंगल क्वाड्रेंगल पढ़ते होंगे, क्वाड्रिलेटरल है ना ये सब। फिर ये आपका नेक्स्ट वर्ड है गॉन। गॉन मैंने ये वर्ड इसलिए लिए क्योंकि आप मैथ्स में इन वर्ड्स का यूज तो करते हैं, पर क्या आपको इनके मीनिंग मालूम है? बहुत सारे वर्ड्स हम बहुत यूज कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लैटिन ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो लैटिन और ग्रीक ओरिजिन है, और इनको हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे गॉन का मतलब आप याद कर लीजिए एंगल, तो बस पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, तो आपको सारे मीनिंग क्लियर होती जाएंगे। ये देखिए मॉल और मेलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मॉल मेलस मतलब रॉन्ग, हार्मफुल, इविल, मतलब कोई खराब चीज की तरफ, नेगेटिव चीज की तरफ। जैसे मेलडिक्शन यानी कि द डिक्शन अटरेंस ऑफ अ कोर्स, समथिंग प्रीटी बैड। एल्फैक्टर यानी इविल डूअर, क्रिमिनल को बोलते हैं बैड फैक्टर। मैलिस मीन डिजायर टू हर्ट अदर, जिसकी इच्छा ही दूसरों को हर्ट करने की हो। तो ये डिक्शन माने जो रिलेटेड टू समथिंग रिटन, विच इज रिटन, है ना, और ये वाली फैक्टर क्रिमिनल और मैलाइज, ये तीनों वर्ड्स मॉल से ही शुरू होते हैं। तो मॉल न्यूट्रिशन वर्ड पढ़ते हैं ना, कुपोषण, तो आप याद रख सकते हैं मॉल माने कु यानी नेगेटिव। अब ये देखो एक्स और एर हम कर चुके हैं आउट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। फिर माइक्रो और मैक्रो हमने पढ़ लिया। माइक्रोस्कोप, माइक्रो माने क्या था, स्मॉल। हॉर, हॉर माने क्या है, ड्रेड, जो आपको डरा दे, हॉरर, हॉरिफिक। तो आप समझ जाइए हॉर जब भी कई वर्ड आए मतलब मोनो, मोनो माने वन, मोनोसिलेबिक, मोनोथीस्ट, मोनार्की, मोनार्की मैंने बताया था ना वन मैन रूल। मोनोलॉग, लॉग माने क्या था, स्पीच, लॉग माने क्या था, स्पीच, तो स्पीच बाय वन। मोनोटोन, एक हैमलेट में मोनोलॉगी है, बहुत फेमस है। तो कभी आपको टाइम मिले तो आप बुक्स को पढ़िए, शेक्सपियर की नॉवेल्स को पढ़िए, बहुत अच्छी इनके वर्जन हैं, इजी वर्जन भी मिल जाएंगे आपको नेट पे। तो आप जो एक्सटेंसिव रीडिंग्स के लिए जाएंगे तो आप इसमें वोकैबुलरी और आपकी फ्लुएंसी, ये सब चीज़ों पे आप बहुत काम कर सकते हैं। दिस इज अ गोल्डन टाइम, स्कूल्स बंद हैं और मैक्सिमम टाइम आप फ्री रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम हियर एंड देयर, it is better you go for reading. This is the best thing which you can invest, and you will value it for your lifetime. Mind me, mind my words, remember this. Okay, next, call hot, calories, देखो call words hot, calorie, calories भी देखो hot, calorie, scald words जो hot, देखो picture भी है साथ में। mega, megala means large, mega ना, मेगाफोन बहुत, मेगाबाइट आप उसमें पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट्स। फिर ये और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑल्टर, अदर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, है ना, ये ऑल्टर। फिर मेगा, मेगलो, लार्ज पढ़ चुके हैं। क्रॉन, टाइम, टाइम का हमने वर्ड पढ़ा था लेकिन उसके एग्जांपल्स कम थे, तो यहाँ पे टाइम के एग्जांपल है। क्रोनोलॉजी यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। क्रॉनिक, जो बहुत लंबे समय से चल रही है, क्रॉनिक भी बीमारी मतलब जो बहुत क्रॉनिक है, जो बहुत लंबे समय से चल रही है। क्रोमोमीटर क्या होता है, स्टॉप वॉच को बोलते हैं। अब देखो यू, यू माने क्या होता है, गुड, जैसे यूरेका लगा दिया हमने, यूरेका वेरी गुड है ना। ये मॉट पढ़ चुके हैं हम, पोस्टमार्टम और ये सब। एप्ट, एप्ट, हाँ ये एप्ट, एप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड आपका ये बताता है मतलब सूटेबल, एप्ट माने क्या होता है, सूटेबल। जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड माने उसे सूटेबल। फिर क्रेड, क्रेड माने क्या होता है, बिलीव, ये वर्ड मैंने आपको पहले लिया था। क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडिट, जेक्ट पढ़ चुके हैं हम। पेड और पेडो, पेड और पेड माने चाइल्ड, ये पेडिशियन के पास जाना है ना, पेडी, पेडी माने रिलेटेड टू चाइल्ड, बॉय, बच्चा, छोटे से। विज, विजुअल माने सीखना, विजुअल एड्स, है ना। ये ओलॉजी, साइंस, साइक, माइंड, स्पिरिट, है ना। माटा, माटा, मदर। एस्ट्रो यानी स्टार। इतने सारे अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स हैं, तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स थे जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं उनको मैं आपके लिए लाई हूँ। और आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट।
ये देखिए और भी थे। विला मीन्स हाउस, विला कहीं भी लैटिन वर्ड है ये, मतलब हाउस। ऑल्टा टॉल, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई पे। एंटिक्वा एंटीक ओल्ड। लॉन्गा लॉन्ग। मैग्ना लार्ज। मैग्नीफाई मैग्निफिशन मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स हमारी वोकेबलरी को इनहेंस कर रहे हैं। पिक्चूरा पिक्चर से रिलेटेड। नोवा न्यू, है ना। नोवा। टेरा लैंड अर्थ, है ना। टेरा लैंड अर्थ। टेरिडियल टेरेस, टेरेस माने छत हो गया, छत पे जमीन को। टेरेस्ट्रियल टिरेन। प्राइमा मीन्स फर्स्ट, है ना। प्राइमा सस्पेक्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट प्रिमिटिव यानी फर्स्ट आदिवासी। प्री मिडिल। प्राइमरी स्कूल प्राइमरी मैंने फर्स्ट। अब कभी आपने सोचा नहीं होगा कि प्राइम मतलब क्या होता है। सब सब माने अंडर। सब इंस्पेक्टर होता है, सब वे, ये सब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के संग ये वीडियो मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन आई विल बी कमिंग बैक विद मोर लैटिन वर्ड्स फॉर यू। प्लस आई विल बी वर्किंग ऑन your suffixes, prefixes, then one word, opposites, synonyms, and lots of coming up. So please subscribe the channel for all the videos so that you can see them as soon as I publish them. And there are spoken videos on spoken video, listening video, plus grammar is also there. So this all I am doing for all my students. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself.